الله وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم. على عظیم برکت ذریعہ عشق محمد امام احمد رضا خان حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے کہ خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی 11. خواجہ کی چھٹی ہو کہ بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. یہ مدرسہ جامعہ بدعیہ رضویہ پہ حضرت علامہ و مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ کی قیادت میں طلبہ اہل سنت کی محنت اور مشقت آپ لوگوں کی محبت سب شامل ہے. یہ مدرسہ جامعہ بدعیہ رضویہ پہ عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام کیا گیا. مختصر سا پروگرام رکھا گیا. آپ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل ہے. کون سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری کو سنجر شہر خراسان میں پیدا ہوئے اور 6 رجب المرجب 633 ہجری کو اس دنیا سے وفات پا رہے ہیں. 6 رجب المرجب آج کی جو تاریخ ہے 633 ہجری کو ان کا لقب عطا رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے. عطا رسول فی الہند سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت سلطان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام ہے معین الدین حسن. ان کا نام ہے معین الدین حسن. ان کے والد صاحب کا نام ہے سید غیاث الدین حسن. ان کی والدہ کا نام ہے حضرت ام الورا بی بی ماہ نور سے مشہور ہوئی. سید غیاث الدین حسن نام ہے ان کے والد صاحب کا. کن کے والد صاحب کا؟ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا سید غیاث الدین حسن. والدہ کا نام ام الورا لیکن بی بی ماہ نور سے مشہور ہوئی. جانتے ہیں آپ جب اس دنیا میں آئے بہت کم عمری ہی میں ان کی والدہ کا وصال ہو چکا. بہت ہی کم عمری میں والدہ کا وصال ہو چکا اور 15 سال کی عمر تھی آپ کی کہ آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. کم عمری میں ان کی والدہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 15 سال کی عمر ہوئی تو سید غیاث الدین حسن جو ان کے والد صاحب ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا. جانتے ہیں یہ 8ویں پشت میں سید غیاث الدین حسن حضرت موسیٰ کاظم کے پوتے ہیں اور ان کی والدہ ام الورا بی بی ماہ نور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. تو حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, والد کی طرف سے حسنی سید ہیں, نجیب الطرفین ہیں. لہذا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ نے اعلیٰ کیا ہے. علی کے گھر کے ہیں, علی کے دلارے ہیں. امام حسن حسین کے گھر کے چراغ ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے چراغ ہیں. حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے, وہ شان ہے, وہ مرتبہ ہے. لہذا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا بیان ہے جب میرا معین الدین حسن میرے شکم میں آیا, جب شکم میں آمد ہوئی تو میرا گھر روشن اور منور ہو گیا. سبحان اللہ. خیر و برکت کا نزول ہونے لگا اور آدھی رات کے وقت میرے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ. جب امام حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن میرے شکم میں آئے, جلوہ گر ہوئے تو میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا. میرے گھر میں خیر بھلائی کا نزول ہونے لگا اور آدھی رات کے بعد تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آتی تھی. میں اس آواز میں گم ہو جایا کرتا.
मैं उस आवाज में गुम हो जाया करती थी। हाँ, ये भी फरमा रही हैं आप, माहिनूर ये भी फरमा रही हैं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया तो दुश्मन भी मुझसे मोहब्बत से पेश आते थे, दुश्मन भी मोहब्बत से पेश आते थे। और आधी रात तक जो है कि वह तस्वीर शुरू होती और भर रात जो है सारी रात अल्लाह के जिक्र में जिक्र की आवाज आती मेरे शिकम से। मैं इस आवाज में गुम हो जाती। जब मेरी बेटी की विलादत हुई मेरा घर नूर से रोशन और मुनव्वर हो गया। जब विलादत हुई वो सुल्तान हिंद ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी छठी हम मना रहे हैं। मदरसा जामिया मुराद जो है ना, वो उसमें इंशाअल्लाह मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला के नाम से महफिल होगी। 13 रजबुल मुरज्जब को मौला अली शेर खुदा खाने काबा में पैदा हो रहे हैं, खाने काबा में पैदा हो रहे हैं और अल्लाह ही के घर में विसाल फरमा रहे हैं। खाने काबा में कैसा बच्चा है भाई, कितना मुकर्रब बच्चा, कितना बरगुज़ीदा है, कितना मकाम आला अल्लाह ने किया मौला अली शेर खुदा को। उन्हीं के घर के चिराग मोइनुद्दीन चिश्ती संजनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उन्हीं के घर के चिराग हैं। लिहाजा आप पैदा हो रहे खाने काबा में। कब पैदा हो रहे हैं? 13 रजबुल मुरज्जब। और विसाल पा रहे हैं 17 रमजान मुबारक को। 21 रमजान बार रिवायत दीगर 21 रमजान मुबारक को आप विसाल फरमा रहे हैं। शहादत आपकी हो रही है, अल्लाह के घर में ही शहादत हो रही है। पैदा भी हो रहा है अल्लाह के घर में और शहादत भी अल्लाह के घर में मिल रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आने वाला जुमरात 13 रजबुल मुरज्जब की तारीख है, उसमें उनकी विलादत पाक के मुतअल्लिक़ इंशाअल्लाह महफिल मदरसा जामिया वदविया रज़विया में होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा जानते हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान को बयान करना चंद मिनटों का काम नहीं है। आप 9 साल की उम्र में मुकम्मल हाफिज कुरान हो गए, 9 साल की उम्र में मुकम्मल हाफिज कुरान हो गए। चंद मैं 2-3 शेर पढ़ के इंशाअल्लाह महफिल को खत्म करूंगा। बात अच्छी लग रही है? प्रोग्राम हो रहा मुख्तसर वक्त है, सब कहीं जाना इसीलिए, वरना प्रोग्राम में थोड़ा मेरा दिल चाह रहा था कि उनके नाम से कुछ उनके मुताल्लिक में कुछ बात पेश करूं, लेकिन मुख्तसर वक्त है। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप सुनिए आप, लिहाजा 9 साल की उम्र में आप क्या हो गए? हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। जानते हैं हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में एक नौजवान आया जो अपने आस्तीन में छुरी छुपा के लेके आया और इस इरादे से आया था कि मैं उनको कत्ल कर दूंगा, उनको कत्ल कर दूंगा। सुनिए आप, कत्ल कर दूंगा। लेकिन जैसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया, आपने मुमिनाना फिराज से आपने उसके इरादे को पहचान लिया, जान लिया, क्योंकि अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आपने उसका भांप लिया, मोमिनाना फिराज से इरादा भांप लिया, इरादे का पता कर लिया। क्या इंसान जिस मकसद से तू आया है अपना काम कर। छुरी लेके आया था, कत्ल के इरादे से आया था। हजरत गरीब नवाज के कत्ल के इरादे से आया था। क्या जिस इरादे से तू आया है ना अपना काम कर। वो इंसान शर्मिंदा ताजी हो गए, थर-थर कांपने लगे। कहा हुजूर मुझे कुछ लोगों ने लालच दिया था, पैसे की लालच दिया था, मारो दौलत की लालच दिया था कि जाओ गरीब नवाज को कत्ल कर दो। लिहाजा हुजूर अब मेरी ख्वाहिश है कि इसी छुरी से, मैं अपने रास्ते में छुरी छुपा के लाया था, इसी छुरी से मेरा काम तमाम कर दो। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मोमिनों का तरीका ये नहीं होता है कि जो उसके साथ बुराई करने के लिए आए उसके साथ बुरा किया जाए, बल्कि मोमिनों का शेवा तो ये होता है, मोमिनों का तरीका तो ये है जो उसके साथ बुराई का इरादा करने के लिए आए उसे भी अपने सीने से लगाए। अब मेरा इरादा है, मैं कायद होता हूँ, मैं आपके हाथ में आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, गुलाम बनना चाहता हूँ। लिहाजा आप मुझे अपने मुरीदी में, अपने गुलामी में मुझे ले ले, अपना मुरीद बना ले, अपना गुलाम बना ले। आपने अपना मुरीद बना लिया, जानते क्या हुआ? मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कर जाती है। चलो शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। बात बहुत है लेकिन छोटी सी बात 2 सुना देता हूँ, फिर 2-3 शेर पढ़ दूंगा, है ना? सुभान अल्लाह कहिए आपको। सुभान अल्लाह। अच्छी लग रही है जी? सुभान अल्लाह कहते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना नबी पाक की सुन्नत है। कहाँ लगाना नहीं, मुस्कुराना। किसी मोमिन को मोमिन देख के मुस्कुराए तो भी सवाब है। तो मुस्कुराना ये अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपकी नियत, लेकिन मुस्कुरा रहे आप और हमको अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो हमको सवाब मिलेगा। लिहाजा मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। तो इतनी शेर पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत प्यारी महफिल है। पहले आप सुनिए, हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ जा रहे हैं। एक जंगल बयाबान में कुछ लोग आपकी परस्तिश कर रहे थे, आपकी पूजा कर रहे थे, और उसका ये हाल था कि 6 महीना खाना नहीं खाते। मखलूक खुदा गुमराह हो रही थी,
6 महीना खाना नहीं खाते, आग की पूजा करते, आग की प्रस्तिश करते, पूजा करते। अब अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे कि जंगल बियाबान में 6 महीना वो जमात खाना नहीं खाती। मखलूक के खुदा गुमराह हो जाती, क्या बात, कैसे लोग ये कि 6 महीना खाना नहीं खाते हैं, गुमराह हो रहे थे। आपने कहा तू इस आग की पूजा क्यों करता है? तो उन लोगों ने कहा मैं इस आग की पूजा इसलिए करता हूं ताकि आग मुझे न जलाए। आपने कहा जब यही बात है तो आग में अपना हाथ डाल, का हुजूर हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा, का फिर पूजा क्यों करते हो? पूजा करते हो कि आग न जलाया का, और जब मैं बोल रहा हूं कि आग में हाथ डालो तो कहते हो मेरे आग का काम जलाना है। का सुन, तुझे डर है ना, मैं अपने हाथ को नहीं बल्कि अपनी जूती को डाल रहा हूं। आपने अपने पांव की जूती उतारी, आग में डाल दिया। जैसे ही आग में डाला, क्या आए आग, ये खुदा के एक मुकर्रब बरगुज़ीदा बंदे की, एक अदना से बंदे की, खुदा की इबादत करने वाले बंदे की जूती है, इसको जहर न पहुंचाना है, इसको न जलाना। मुअर्रिखीन ने लिखा है, किताबों में आया है कि आग में जूती जैसे पड़ी, आपके अंदर दाखिल जूती जैसे हुई, खराउन जैसे दाखिल हुई कि आग ठंडी हो गई। आग ठंडी हो गई, आग ने जलाया नहीं। जब जूती आप निकालते हैं ना, उस जमात को मुखातिब पैदा करते हैं, तुम कह रहे थे ना कि आग जलाएगी, मेरी जूती को भी आग ने नहीं जलाया। वो जमात कदमों पे गिरती है, कहती है ये दीन बड़ा प्यारा दीन है, इस्लाम अच्छा मजहब है, लिहाजा आइए हुजूर मैं आपके कदमों पे गिर के। सारी जमात ने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। तमाम लोग कलमा पढ़ के इस्लाम लाए। जूती को आग ने नहीं जलाया, जूती को आग ने नहीं जलाया। ये करामत है हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन है, दीन के मददगार है। गौसे आज़म मुहीउद्दीन है, दिन को जिंदा करने वाले, और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुइनुद्दीन है। अभी आपने हज़रत अल्लामा तौसीफ साहब से मुकम्मल बयान, अच्छा बयान आप समाप्त किया आपने। हाफिज़ क़ादी आफ़ाक़ आलम साहब से भी अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बात पेश कर रहे थे। जानते एक दिन आप गुजर रहे थे, एक बच्चा तीर कमान कमर में बांधे हुए तीर कमान लिए गुजर रहा है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये बच्चा दिल्ली का बादशाह बनेगा। कम उम्री में कम सिन बच्चा है, तीर कमान लिए जा रहा है। सैयद वहीउद्दीन अहदुद्दीन भी है, उनके और रुफ़क़ा हैं, उनके मुक़र्रबीन हैं, उनके गुलाम हैं, उनके मुरीद वगैरह साथ में हैं। आपने कहा ये बच्चा जो है ना दिल्ली का बादशाह बनेगा। जमाने वालों ने देखा वही बच्चा था। जब दिल्ली का बादशाह बना सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, 26 साल आपने दिल्ली पे हुक्मरानी की। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की नजर है। कम सिनी की उम्र में आपने कहा ये बच्चा दिल्ली का बादशाह बनेगा, तो बादशाह बना। वही सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से मशहूर हुए, 26 साल हुकूमत फरमाई। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के नजरों की बरकत है, उनका करम है। लिहाजा जानते हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब 633 हिजरी शुरू हुई ना, तो आप समझ रहे कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा। हिजरी शुरू हुई 633 हिजरी। कब शुरू होता है इस्लामी कैलेंडर? मुहर्रम में। जब शुरू हुई हिजरी कि आपने समझ लिया कि ये साल मेरा आखिरी है। जानते हैं आपने जुमा अजमेर शरीफ की जामा मस्जिद में हाजिर हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली से बुला लिया, और शेख अली संजदी को आपने कहा कि खिलाफतनामा तैयार करो। और आपका मौजू था तकरीर का मलकुल मौत। मौजू क्या था? मलकुल मौत मौजू था। शेख अली संजदी से कहा खिलाफतनामा तैयार करो, और इसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली से बुलाया। आपने खुद गुल रखा और अमामा बांधा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के सर पे जो है अमामा बांधा, खिलाफत दिया, असा दिया, मुसल्ला दिया, और जो तबरुकात थे सब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को अता फरमाया कि ये मेरे नस्ल से, मेरे बड़े बुजुर्गों से नस्ल दर नस्ल ये हम तक पहुंचता आया है। ऐ मेरे बेटे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मैं तुझे दे रहा हूं, कल क़यामत के दिन मुझे मेरे नाना के सामने शर्मिंदा न करना। सुभान अल्लाह। आपने खिलाफत दिया, किसको? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को बुलाया, खिलाफतनामा लिखवाया हजरत शेख अली संजदी से, खुद बांधा अमामा, मुसल्ला दिया, लोटा दिया और मुसल्ला दिया, और जो तबरुकात आपने नवाजा का ये मेरे खानदान वालों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से हम तक आया है, अब मैं तुझे दे रहा हूं। जानते हैं आप, फिर आपने अपने दरवाजे को बंद कर लिया और इशा की नमाज के बाद अपने दरवाजा को बंद कर लिया। बंद करने के बाद सारी रात आवाज आती रही, सुभान अल्लाह, और जिक्र की आवाज, नमाज की आवाज आती रही। सुबह के वक्त में आवाज बंद हो गई। जब आवाज बंद हो गई, लोगों ने, मुरीदों ने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा नहीं खुला। जब सूरज तुलू हो गया तो लोगों ने, उनके मुरीदों ने, उनके रुफ़क़ा ने, उनके मुहिब्बीन ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके गुलामों ने दरवाजा को तोड़ा। जब तोड़ के दाखिल हुए तो देखा कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है।
اور پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ پیشانی پہ تحریر تھا، پیشانی پہ ماتھے پہ تحریر تھا، یہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ کی محبت میں پردہ فرما کے۔ پھر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت فخر الدین نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اسی جب لوگوں کو معلوم ہوئی نا یہ خبر بجلی کی طرف پھیل گئی، ہزاروں لوگ جنازہ میں شریک ہوئے، پھر آپ کے بڑے صاحبزادے فخر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی کمرے میں، اسی حجرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا جو اجمیر شریف ہے، جو ہندوستان کے سرزمین پہ راجستھان میں ہے اجمیر شریف، وہی ان کو دفن کیا گیا جو ہندوستان کے راجا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند ہے، ہندوستان کے راجا ہیں۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ حقیقت میں راجا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس طرح آپ 6 رجب المرجب کو آپ نے پڑھا۔ اب میں تو تیسرے پڑھ دوں جو میں نے وعدہ کیا، 2 شہید